Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. Okay. Which period is this? Tell me. Which period is this? This is your EVS period. Okay. This is your EVS period. And what is the date? Today is 3rd of April. Okay. 3rd April. Okay. Now you must have seen the clouds. Okay. So can anybody tell what they are made up of? Okay. Clouds जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं, किस चीज के बने होते हैं? Who can answer? First, raise your hand. Who want to tell the answer? Clouds are made up of. Okay. Rohit, you stand up. Okay. They are made up of cotton balls. Okay. Radhika, you stand up. Yes, they are made up of snow. Okay, they are made up of snow. Okay. So what they do? Tell me what the clouds do. Who will answer? These are the clouds. What they do? Yes, it causes rain. Okay, the clouds, they are responsible for the rainfall. Okay, so if it causes rain, then there must be some kind of water present in the clouds. Okay, or we can say that there must be some form of water which is present in the cloud. So from where this water comes in the cloud? Because as you all know that it causes rain. Okay, so there must be some form of water which is present in the cloud. So let us talk about the river or lake. आप लोगों ने rivers देखे हैं, lakes देखे हैं. In the summer season, it levels falls down. समर में क्या होता है कि इनका जो लेवल होता है इट फॉल्स डाउन. ओके, बट इन विंटर्स इन रेनी सीजन इट लेवल्स अगेन राइजेस. रेनी सीजन में क्या होता है कि जो इनका लेवल होता है वो ऊपर उठ जाता है. समर सीजन में इनका लेवल कम हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट हैपेंस? व्हाई इन समर सीजन द लेवल ऑफ रिवर्स, लेक्स, इट फॉल्स डाउन? कैन एनीबडी आंसर? यस, यू राजेश. Due to heat of the sun. Okay, very good. It happens due to the heat of the sun. Okay, because in summer season the heat of the sun is very high, and due to this high temperature the level of the water decreases because some water gets converted into vapors. Yesterday हमने क्या किया था? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, हमने वाटर को बॉयल किया था विद द हेल्प ऑफ स्टीमर. ठीक है, हमारे पास क्या था? वाटर स्टीमर था, और हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया था विद द हेल्प ऑफ दैट स्टीमर. तो आपने क्या देखा था? जो वाटर वेपर्स निकल रहे थे, whether they are moving downward or they are moving upward. They are moving upward. Okay, the water vapors were moving upward. Okay, तो कल हमने देखा था कि जब हम वाटर को बॉयल कर रहे थे, when they are heating the water, it moves upward. वो ऊपर की तरफ जा रहा था. Similarly, when the high temperature, when the rays, sun rays fall on these water bodies, ये क्या होते हैं? ये हीट होने लगते हैं. अच्छा, सिर्फ वाटर बॉडीज ही हीट होते हैं या और भी कहीं वाटर प्रेजेंट है जो हीट होते हैं? कहीं भी हो सकते हैं. Whether it will be a river, lake, ocean or anywhere, the water is present. When it gets heated, it converted into vapors. Okay, so when the heat from the sun falls on these water bodies, it gets converted into vapor form. Okay, जो आपको liquid state में water दिख रहा है, this is the water, and it gets converted into vapor form. And as you all know that as the vapors rises upward, okay, जो water vapors होते हैं they moves upward. So why they move upward? Why not downward? Who can answer? Yes, you. Because they are lighter. Very good, Arpit. Because as the water vapors are lighter, they move upward. Okay, so what we have seen, the water vapor, the water which is in the liquid state gets converted into the vapor state, gaseous state, that is the vapor. So the conversion of this water that is in the liquid form into the vapors form is known as evaporation. इसी को हम लोग कहते हैं evaporation. What is evaporation?
Evaporation is the process of conversion of water into water vapor. What is evaporation? It is the process of conversion of this liquid state of water into gaseous state, that means vapors. Okay, so water bodies धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, they gets converted into the vapor form. और जैसे ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एज दे आर लाइटर दे मूव अपवर्ड. ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि वाटर लेवल धीरे 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 फॉल होने लगता है इन समर सीजन. अच्छा, कोई एग्जांपल आप लोग बताएंगे जो कि आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं ऑफ इवापोरेशन? हु कैन टेल एनी अदर एग्जांपल व्हिच इज रिलेटेड टू इवापोरेशन? नो वन? ओके, आई एम गिविंग यू एग्जांपल. इन समर सीजन और इन एनी सीजन, when you wash your clothes, what you do? You put them under the sunlight. Okay, आप अपने कपड़े को धोने के बाद क्या करते हैं, उसको सूरज के सामने डाल देते हैं. ठीक है, इसको जब डालते हैं तो क्या होता है, it dries up. Okay, after washing the cloth, when you put your clothes in the sunlight, what happens? It dries up. Why it dries up? Because the water which is present in the cloths are heated and they get converted into water vapor. So this is also evaporation. Okay, one more example. You can see the floor of the classroom. Okay, you can see the floor of your classroom. It looks very clean. Okay, why it looks very clean? Because हम इस पे क्या करते हैं, हम इस पे पोछा करते हैं. Okay, we clean it. We do mopping of the floor. And when we mop the floor, what happens? It becomes wet. जब आप पोछा लगाते हैं अपने फ्लोर पे, यानी कि फर्श पे, तो वो गीला होता है. But after some time you can see that it dries up. So why it dries up? Where the water goes? It evaporates. Yes, it evaporates. कुछ समय बाद आप देखते हैं कि आपकी जो फर्श है वो सूख जाती है, because the water changes into water vapor, and that is also evaporation. Clear? जब आप वाटर को बॉयल करते हैं, then also the liquid state water gets heated and it also gets converted into water vapor, and that is also called evaporation. So it is clear what is evaporation? Okay, now as the water vapor, as they are lighter, they move upward. Okay, now what happens when they move upward? As the temperature above are colder. ओके, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी लो होता है. और जब लो टेम्परेचर में क्या होता है, कल हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था. हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? हमने, यस, वेरी गुड, हमने एक ग्लास और आइस क्यूब्स का एक्सपेरिमेंट किया था. एंड इन दैट एक्सपेरिमेंट व्हाट वी हैव डन, मैंने एक ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स को डाला था, एंड आफ्टर सम टाइम्स यू हैव सीन द वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड द ग्लास. ओके, आपने देखा था कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए थे उस ग्लास के चारों तरफ. Why it happens? Because, yes, it happens because when we provide low temperature to the water vapor, it gets converted back into the water. यानी कि जब इस वाटर वेपर को हम लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या होगा, ये दोबारा आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, वाटर में. और यही होता है कि जब ये वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं, when they rises up, it gets कोल्डर. एज जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, ऊपर का टेम्परेचर काफ़ी होता है लो, एंड इन दैट लो टेम्परेचर इट कंडेंसेस. ओके, और ये क्या होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है. ये बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि बहुत सारे हमारे एयर में बहुत सारा वाटर वेपर होता है, क्योंकि बहुत सारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया था. और ये सारे वाटर वेपर्स अब धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, व्हेन दे राइजेस अप दे बिकम cooler, and as they cool down they condenses into the water droplets. Okay, और ये जब वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ कंबाइन होते हैं, then they form the clouds, और यही से क्लाउड्स आपके बनते हैं. अब यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज. व्हाट आर दे? पहला तो ये हो सकता है कि जो आपके वेपर्स थे वो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और अगर हम फर्दर इसको कूल करेंगे तो क्या होगा, when we further cool it, they will become in the form of ice crystals. Okay, ये ice crystals की फॉर्म में भी बन सकती है. Okay, so clouds may be the water droplets or it may be in the form of ice crystals also.
Okay, so clouds, water clouds, they are made up of water droplets. And why these water droplets are present? Because the vapors gets condenses into the water droplets. So इस process को हम क्या कहते हैं? This process known as condensation. Okay, what we call this process? This is known as condensation. Okay, both the processes are clear. The first one is evaporation and the second one is condensation. Okay, the first one is evaporation and the second one is condensation. अब हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये हमारे क्लाउड्स में प्रेजेंट है। फिर क्या होता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपके हैवी होने लगते हैं जब व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर मोर इनफ एंड एज देयर साइज इंक्रीजेस, जब इनका साइज इंक्रीज होने लगता है तो ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं। एंड व्हेन दे गेट हैवी, सपोज दीज आर द लैंड फॉर्म्स, ओके, दीज आर द लैंड फॉर्म्स। जब ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, मैंने भी आपको बताया था, व्हेन एनीथिंग इज लाइटर दे मूव अपवर्ड एंड व्हेन एनीथिंग गेट्स कूलर, जब वो ठंडे हो जाते हैं ये नीचे आने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे जब ये चीज़ हैवी हो गया, कोई भी चीज़ जब हैवी है तो क्या होगा, इट फॉल्स डाउन, ये नीचे की तरफ आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। जो लोग आपको बारिश देखते हैं क्या है, एज द वाटर ड्रॉपलेट्स गेट हैवियर इट फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। ओके, रेन, ओके, इज रेनिंग। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, precipitation. This is called precipitation. What is precipitation? When the size of these water droplets becomes more and as they become heavy, they falls down in the form of rain and this is known as precipitation. ठीक है, तो जब ये रेनफॉल हो रहा है तो आपने क्या देखा कि ये फिर से वाटर फ्लो करता हुआ दोबारा उसी प्लेस पर या अलग अलग जगहों पर पहुंच जाता है। यानी द वाटर इज अगेन, द लेवल ऑफ द वाटर राइजेस इन द रेनी सीजन बिकॉज एज द रेन द वाटर अगेन फ्लोज एंड इट अगेंस, ये वाटर दोबारा फिर से इस वाटर बॉडी में चला जाता है और ये वाटर लेवल फिर से हमारा इंक्रीज हो जाता है। यानी कि कंप्लीट एक साइकिल बन रहा है। आप देख रहे हैं ये वाटर एक साइकिल पूरा कर रहा है। दैट इज वाई इट इज नॉन एज वाटर साइकिल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। इट इज नोन एज वाटर साइकिल। ओके, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं वाटर साइकिल बिकॉज द वाटर इज कंप्लीटिंग अ कंप्लीट साइकिल। आपने देखा वाटर यहाँ पे इवापोरेट हुआ, इट राइजेस अपवर्ड एंड एज इट राइजेस अपवर्ड इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स कूलर। So when its temperature decreases, it changes its forms from gaseous state to liquid state. इसने अपना फॉर्म चेंज किया और ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स एंड दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। एज द साइज ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स इंक्रीजेस, जब ये साइज में इंक्रीज होते हैं दे बिकम हैवियर एंड एज दे आर हैवियर नाउ दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड दिस इज नोन एज precipitation. Okay, and as they fall down they flow in the form of rivers from one place to another place and it again reaches the water bodies and as by doing this it completes a cycle and that cycle of water is known as water cycle. Clear? बताइए यहाँ तक clear है? Is that clear to everyone or anybody wants to ask any question related to this? Okay, now can anybody tell what is the importance of this cycle? Why this cycle is happening? अगर ये साइकिल ना हो तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? What is the importance or what are the benefits of this water cycle? जो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है वाटर का, वाटर अपवर्ड जा रहा है और फिर से रेनफॉल फॉर्म में वापस अपनी जगह पे आ जा रहा है, तो पूरे प्रोसेस में कुछ चेंजेस तो हो नहीं रहे। वाटर एक बार ऊपर उठा फिर से वापस आ गया, तो क्या बेनिफिट है इस प्रोसेस का? Who will answer it? Okay, you, Sunita, बताइए कि what is the advantage of, what is the benefit of this process?
this water cycle. What is the benefit? Okay, you are telling that it is a natural process, no benefit. Okay, no benefit. Okay, anybody else? Okay, you, Sumit, what is the benefit of this water cycle? Okay, it causes rainfall. Okay, very good, it causes rainfall. And if there will be rainfall, what is the benefit of rainfall? देखिए, आपने सही बताया, it causes rainfall. इस वाटर साइकिल में से रेनफॉल हो रहा है, और रेनफॉल से क्या हो रहा है कि जिन जगहों पे पानी नहीं पहुंच पाता, जैसे मान लीजिए अगर ये वाटर साइकिल ना होता, सपोज दीज आर द रीजंस जहाँ पे अभी तक वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, यानी वाटर अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पा रहा। जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जहाँ पर वाटर पहुँच नहीं पाता। तो जब ये प्रोसेस होता है तो उन रीजन्स में भी वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, बिकॉज एज द क्लाउड्स दे आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड क्लाउड्स reaches different places, and as water falls in the form of rain, तो अलग अलग जगहों पे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो वाटर साइकिल का बेनिफिट ये है कि अलग अलग जगह पर ये पानी को पहुंचा देता है जहाँ पर पानी का पहुंचना काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वाटर को नेचुरली टू डिफरेंट प्लेसेस, एंड इससे वाटर की अवेलेबिलिटी पहुंच पाती है उन जगहों पर भी जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं था, ओके। व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ दिस साइकिल? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इस वाटर साइकिल का वो क्या है कि वाटर इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को रिसाइकिल करता है, ओके। द वाटर रिसाइकल्स इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या होता है कि वाटर जो है, सपोज वाटर साइकिल नहीं होता तो क्या होता है, ये वाटर है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर एडेड टू दिस वाटर, ठीक है। आप डिफरेंट तरह के पॉल्यूटेंट्स ऐड कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ठीक है, केमिकल वेस्ट, तरह तरह के इसमें हम वेस्ट मटेरियल्स ऐड करते रहते हैं। धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या होता है कि ये वाटर काफ़ी हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। बट एज द वाटर राइजेस इट इवापोरेट्स एंड when it rains it is the fresh form of water, okay। ये सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे स्वच्छ जो होता है वाटर का सबसे स्वच्छ फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसने अपने आप को क्या कर लिया, रिसाइकिल कर लिया, अपने आप को इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। जो अभी हम पोल्यूटेड वाटर था या जो भी सलाइन वाटर हमारे ओशन में रहता है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो सलाइन वाटर है उसमें से भी सिर्फ वाटर को उसने क्या किया, उन जगहों पर पहुंचा दिया जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी, ठीक। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ दिस वाटर साइकिल। द फर्स्ट वन इज डैट ये हमको वाटर अवेलेबल कराता है उन प्लेसेस पर भी जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये अपने आप को रिसाइकिल कर लेता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड it is a natural process, so we should know about this process, okay। So this process is clear to everyone? Okay, very good, thank you class।